Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have seen the numericals related to the power relation in AM wave. So we have seen some numericals, and one example I have told you to do your by yourself. The last example which I have given you as a homework, the question was a 10 kilowatt carrier is amplitude modulated by 2 sine to a depth of 0.5 and 0.6 respectively. Calculate power of modulated wave. So in this question, the carrier power is given to you 10 kilowatt, and it has been asked to calculate you the power of modulated wave. Means power of modulated means am power, total transmitted power. So the question is asked for you to calculate the total transmitted power in which it is a 10 kilowatt carrier modulated by two different sine wave signals. Two different modulating signal with modulation index value is given to you. One modulation index value is given 0.5 and the other modulation index value is given 0.6. So we have to use these two different modulation index value for calculating the total transmitted power for 10 kilowatt of carrier power. So in this question, PC 10 kilowatt carrier power is given. So first we are calculating total transmitted power for modulation index value 0.5. So we are having the formula of total transmitted power. Total transmitted power PT is equals to TC into 1 plus M square by 2. PC carrier power is given to you in the question 10 kilowatt into the bracket 1 plus first modulation index value is 0.5. So 0.5 the whole square upon 2. While you are calculating this given particular equation, first of all you have to square 0.5, then divide it by 2. Whatever the answer you will get, add it with 1. Now whatever the answer you will get, multiply it with 10k. So total transmitted power you will get for this using modulation index value 0.5 is 11.25 kilowatt. Similarly, you have to find out the total transmitted power for different sine wave signal using modulation index value of 0.6. Rest of all the things are same, will remain same. PC will remain 10 kilowatt. Modulation index value is only changed from 0.5 to 0.6. So you have to use 0.6 the whole square upon 2. While calculating the particular this equation, you will get the answer of total transmitted power as 11.8 kilowatt. So this is the question is just used for calculating the total transmitted power for 10 kilowatt carrier using different modulation index values 0.5 and 0.6. So in this way you have to give the answer for total transmitted power for 0.5 this much, total transmitted power for M 0.6 this much. In this way you are able to solve this particular numericals. So we have seen different numericals related for power relation in AM wave. So this is a very important equation of total transmitted power, very important for using this numerical, for this numerical. So this much all is about the numericals related with power relation of AM wave. Now today's topic of our explanation in this lecture, I am going to explain you the block diagram of AM transmitter. Now we have to see what are the different types of block diagram of AM transmitter. What is AM transmitter? You know very well AM transmitter means from where we are going to transmit our AM signal. Transmitter means to transmit the signal. So in the front there is AM. AM means amplitude modulated transmitter. Amplitude modulated transmitter, what will do? What is the task of AM transmitter? The task of AM transmitter is used for transmitting the AM signal. In the end you will get which signal? AM signal. The block which will transmit the AM signal, that block is known as nothing but AM transmitter block. So what are the different types of AM transmitter we are going to see in this lecture? There are two different types of AM transmitter. First one is low level modulated AM transmitter, and the other one, second one, is high level modulated AM transmitter. Now what do you mean by low level modulated AM transmitter and what do you mean by high level modulated AM transmitter? So just the name is suggesting us low level modulated means the modulation which was done, it as done at the low power level.
low level modulated means modulation done on the particular signal is at low power level. So low level modulated AM transmitter is one type, and the other type is high level modulated. Means high level modulated means modulation which you are doing, it is done at a very high power level. So high level modulated AM transmitter and low level modulated. The modulation done at low power level, the modulation is done at high power level. This is the only difference between these two names, these two types. So by seeing this name, what is the working, we are going to see with the help of this block diagram. So first we are going to see the block diagram of low level modulated AM transmitter. Low level modulated AM transmitter. So as I have told you, explained you, low level modulated means the modulation which was done at low power level. The modulation of AM which was done is done at low power level. Now, please pay attention. For generating AM signal, you know very well we require two signals. Which are those two signals we require for generating AM signal? The first one carrier signal and the other one is modulating signal. The carrier signal is going to be change modulate with respect to which signal? Modulating signal. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब लोग को क्या बोल रहा हूं मैं? हम लोग का अभी का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम ट्रांसमीटर का टॉपिक है. तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम ट्रांसमीटर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? वो एएम ट्रांसमीटर के ब्लॉक्स देखने वाले हैं. अब इसमें सबसे पहले दो टाइप्स बताया हुआ कि दो टाइप के, दो तरीके के एएम ट्रांसमीटर्स है. कौन कौन से दो तरीके के? एक लो लेवल मॉड्यूलेटेड है और एक हाई लेवल मॉड्यूलेटेड है. तो लो लेवल मॉड्यूलेटेड में क्या है? लो लेवल मॉड्यूलेटेड में सिंपली ये होता है कि जो मॉड्यूलेशन होता है एएम का वो लो पावर लेवल पे होता है. हाई लेवल मॉड्यूलेटेड में क्या होता है? जो मॉड्यूलेशन होता है एएम का वो हाई पावर लेवल पे होता है. हाई पावर लो पावर मतलब क्या, समझ में आ रहा है? जिधर पे अपना पावर लेवल ज्यादा होता है, पावर लेवल कम होता है. तो ये चीज है, पावर लेवल ज्यादा होता है मॉड्यूलेशन करने के लिए. हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर में पावर लेवल कम होता है, यानी लो पावर लेवल पे ही मॉड्यूलेशन हो जाता है. यहाँ पे एकदम हाई पावर लेवल यानी एकदम ज्यादा एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, तब उसके बाद मॉड्यूलेशन होगा. यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले ही मॉड्यूलेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसका पावर लेवल बढ़ाया जाएगा. तो ये दो तरीके के हम लोग को टाइप्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम ट्रांसमीटर देखना है. फिर मैं यहाँ पे बात समझा रहा हूँ आपको कि जब भी हम लोग को एएम सिग्नल को बनाना है या ड्रॉ करना है या जनरेट करना है, तो एएम सिग्नल कैसे जनरेट होगा, उसके लिए कौन कौन से सिग्नल की जरूरत पड़ती है, हम लोग ने अपने सारे डायग्राम में देख चुके हैं. जितने भी देखें डायग्राम एएम का भी वेवफॉर्म देखें, तो दो तरीके के तो सिग्नल यूज होते हैं, तभी तो उससे एएम बनता है. एक सिग्नल होता है आपका कैरियर जिसमें मॉड्यूलेशन किया जाता है, और एक सिग्नल होता है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कैरियर को मॉड्यूलेट करता है, जिसके हिसाब से मॉड्यूलेशन होता है. तो दो सिग्नल आपको चाहिए मॉड्यूलेशन करने के लिए. तो ये ब्लॉक में आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा कि पहले वो दो तरीके की सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, वो पहले इधर पे समझाया जाएगा. सबसे पहला ब्लॉक आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इस ब्लॉक का नाम दिया हुआ है स्टेबिलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर. स्टेबिलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, the very first block which you are seeing in low level modulated AM transmitter या AM transmitter में जो भी आप ब्लॉक डायग्राम देखोगे, तो अभी AM ट्रांसमीटर का काम तो समझ में आ गया आपको. AM ट्रांसमीटर का काम क्या है? AM सिग्नल को जनरेट करना, यानी AM सिग्नल को जनरेट करेगा. ये ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम क्या करने वाला है? लास्ट में क्या जनरेट करने वाला है? AM सिग्नल को जनरेट करने वाला है. अब AM सिग्नल को जनरेट करने वाला है. AM सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन कौन से सिग्नल लगेंगे वो आपको इधर पे पहले देखो. तो पहले आपको कैरियर सिग्नल चाहिए, तो कैरियर सिग्नल चाहिए. कैरियर सिग्नल को जनरेट करने के लिए क्या यूज हो रहा है? क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज हो रहा है. क्या नाम दिया हुआ इधर पे? स्टेबिलाइज्ड आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर. स्टेबिलाइज मतलब स्टेबल किया हुआ है. आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी. क्रिस्टल, क्रिस्टल का मेन फंडा क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है. किसको खुश करने, किससे लाइक लेने के लिए, हेलो, किससे कमेंट करवाने. कौन बोल रहे हैं? आप ये जख्म लाइक और कमेंट के लिए लगा रहे हैं, तो आप मुझे जहरा कुछ नहीं देंगे इसका बदला. म्यूट करो. मैंने आपको कह दिया जो उनको करना. मेरी रिकॉर्डिंग चालू है, आप रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब मत करो प्लीज. मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं. तो स्टेबिलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो स्टेबिलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करेगा? यहाँ पे कैरियर सिग्नल को जनरेट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और जिसका ऑसिलेशन भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा.
क्योंकि हम लोग ने अपना कैरियर सिग्नल देखे हैं। कैरियर सिग्नल कैसा रहता है? कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट ऑसिलेशन मिलता है। आप लोग कैरियर सिग्नल देखे होंगे तो आपको पता है कि कैरियर सिग्नल हम लोगों ने बहुत पहले भी देख चुके हैं। इट इज नथिंग बट साइन वेव सिग्नल। जो साइन वेव सिग्नल होता है ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट ऑसिलेशन, जिसका एम्पलीट्यूड भी ऊपर का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो बिल्कुल हम लोग का वैसे ही चाहिए सिग्नल। तो स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या है? स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम ये, यहाँ पे कैरियर सिग्नल जनरेट होगा, जो साइन वेव सिग्नल होगा हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट ऑसिलेशन होगा, इसलिए इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैरियर सिग्नल जनरेट होगा। अब कैरियर सिग्नल को जनरेट तो कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक आपको क्या नजर आ रहा है? क्लास ए बफर एम्पलीफायर। अब आप लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, या तो आपने पढ़े भी होंगे ये अभी एईएल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर एम्पलीफायर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी। तो ये सब टाइप के एम्पलीफायर्स आप लोग पावर एम्पलीफायर्स आप लोग पढ़ेंगे, जिनका काम क्या रहता है? पावर लेवल को बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लास के पावर एम्पलीफायर्स होते हैं जो क्या करते हैं? पावर लेवल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से जो कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ, उस कैरियर सिग्नल का पावर लेवल इंक्रीज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर? पावर एम्पलीफायर, क्लास ए बफर एम्पलीफायर। तो एक क्लास ए बफर एम्पलीफायर को यूज करके जो आपने कैरियर सिग्नल ये ब्लॉक से जनरेट किए, उसको क्या करोगे आप लोग? उसका पावर लेवल क्या करोगे? बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे। फिर यहाँ से एम्पलीफाइड होके अब ये कौन से ब्लॉक पे चला जाएगा? मॉड्यूलेटर। लेकिन अब ये जो आपने एम्पलीफिकेशन किए हो, ये सिर्फ ओनली क्लास ए यूज किए हो, जो सबसे कम पावर लेवल में होता है, स्टार्टिंग को आता रहता है। इसलिए 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 ये पर्टिकुलर टॉपिक का नाम ही देखो क्या दिया हुआ? लो लेवल। इतना ज्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं किया मॉड्यूलेशन के पहले हम लोग ने। अब ये खाली सिंपली एक खाली क्या हुआ? जनरेट हुआ, जनरेट हो गया खाली पावर एम्पलीफायर से, खाली क्या किया? उसको थोड़ा एम्पलीफाई कर दिए, थोड़ा सा पावर लेवल बढ़ा दिया, फिर कहाँ पे भेज दिए इसको? कौन से ब्लॉक में भेज दिए? मॉड्यूलेटर ब्लॉक में भेज दिए, जहाँ पे मॉड्यूलेशन होने वाला है, जहाँ मॉड्यूलेशन होगा, तो मॉड्यूलेटर ब्लॉक में आ गया। फिर इसी के नीचे आपको नीचे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? ये एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब हम लोग की जो ओरिजिनल वॉइस है, जो हम लोग बोल रहा हूँ, मैं जैसा भी माइक का यूज कर रहा हूँ, जो मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ, तो क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल सिग्नल जो साउंड है, जो आप बोल रहे हो, वो यहाँ पे जनरेट होगा, एएफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फिर उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग। अगर फिर भी कुछ आपके ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नॉइस है, या उसको कुछ अच्छी तरीके से प्रोसेस करना है, फिल्टरिंग करना है, तो ये ब्लॉक यूज होता है, ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग। तो ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग से आप लोग का अपना स्मूथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट होता है, स्मूथ साइन वेव सिग्नल जनरेट होता है, फिल्टर किया जाता है। ये ओरिजिनली आपने जो बोले उसको फिल्टरिंग किए, प्रोसेस किए, फिर फिल्टरिंग प्रोसेस करने के बाद वापस से, जैसे आपने यहाँ पे कैरियर सिग्नल के लिए क्लास ए एम्पलीफायर यूज किया था, वैसे ही ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्लास ए एम्पलीफायर यूज करोगे, थोड़ा पावर लेवल उसका बढ़ाओगे, और फिर फाइनली आप कौन से ब्लॉक में दे दोगे? मॉड्यूलेटर ब्लॉक में दे दोगे। अब मॉड्यूलेटर ब्लॉक में दोनों सिग्नल आ चुका है, यहाँ से कैरियर सिग्नल आ चुका है, यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ चुका है। मॉड्यूलेटर क्या करेगा? उसको मॉड्यूलेशन करेगा। अब ये कौन सा मॉड्यूलेटर है? एएम, यानी ये कैरियर में कहाँ पे चेंज होने वाला है? एम्पलीट्यूड में चेंज होने वाला है। बाय सीइंग दिस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, यानी ये ब्लॉक वो सब हैंडल करेगा। तो ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक क्या करेगा? अब ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक एएम सिग्नल को जनरेट करेगा, ये एएम मॉड्यूलेटर है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करेगा। दो सिग्नल आ गए इसके पास, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी आ गया, कैरियर सिग्नल भी आ गया। अब मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अब ये जो मॉड्यूलेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका पावर लेवल क्या है? कम है। हम लोग ने इतना ज्यादा पावर एम्पलीफाई नहीं यूज किए पहले, हम लोग ने सिर्फ एक ही नॉर्मल सा पावर एम्पलीफाई यूज किया, जिसका नाम है क्लास ए एम्पलीफायर। सिर्फ क्लास ए एम्पलीफायर को यूज करके हम लोग ने डायरेक्टली मॉड्यूलेटर ब्लॉक को दे दिए। अब मॉड्यूलेटर ब्लॉक ने क्या जनरेट कर दिया? एएम सिग्नल जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे एएम सिग्नल जनरेट हुआ, उसके बाद हम लोग फिर वापस से पावर एम्पलीफायर्स यूज कर रहे हैं, चेन ऑफ पावर एम्पलीफायर्स। यानी आफ्टर मॉड्यूलेशन यू आर यूजिंग पावर एम्पलीफायर्स टू इंक्रीज द पावर लेवल ऑफ एएम सिग्नल। अब यहाँ से हम एएम सिग्नल का पावर लेवल बढ़ा रहे हैं। तो लीनियर एम्पलीफायर यूज किए, क्लास बी, क्लास ए बी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पावर एम्पलीफायर्स यूज किए। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू चेन ऑफ एम्पलीफायर्स, लीनियर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, जो एएम सिग्नल आपका मॉड्यूलेटर ब्लॉक में जनरेट हुआ, अब उसका पावर लेवल यहाँ पे ये दो ब्लॉक से यूज करके बढ़ाया जा रहा है।
फिर एक अच्छा खासा इंक्रीज पावर लेवल का एएम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट होता है, फिर उसको आप ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करते हो, फिर वो स्पेस में ट्रांसमिट होता है। तो ये ब्लॉक में आपको समझाने की क्या बात थी, ये ब्लॉक में आपको समझाना मुझे ये था कि ये जो मॉड्यूलेटर ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये मॉड्यूलेटर ब्लॉक में जो मॉड्यूलेशन हुआ है वो पावर लेवल कम में हुआ है, लो पावर लेवल पे हुआ है। फिर जो मॉड्यूलेशन हो गया तब उसके बाद एम्पलीफिकेशन हुआ है, तब अच्छा खासा एएम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हुआ है, फिर उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू भेजा गया है। तो दिस इज द ब्लॉक ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेटिंग, यानी जहां पे मॉड्यूलेशन जो हुआ है वो लो पावर लेवल पे हुआ है। आफ्टर मॉड्यूलेशन फिर आप पावर एम्पलीफायर का यूज करके उसका पावर लेवल बढ़ाते हो, एएम का पावर लेवल बढ़ाते हो और फिर स्पेस में भेजते हो। तो अगर एक्सप्लेनेशन पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा, इन लो लेवल मॉड्यूलेटिंग एएम ट्रांसमीटर द कैरियर सिग्नल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये ऑब्टेन फ्रॉम है क्रिस्टल ऑसिलेटर इज स्टेबलाइज एंड एम्पलीफाइड एंड गिवन टू द मॉड्यूलेटर ब्लॉक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कैरियर सिग्नल जो ऑब्टेन हुआ वो स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज करके स्टेबलाइज किया गया, उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसको मॉड्यूलेटर ब्लॉक में भेजिए। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे वही दिया हुआ है, ऑडियो सिग्नल इज प्रोसेस फिल्टर एंड एम्पलीफाइड एंड देन गिवन टू मॉड्यूलेटर ब्लॉक। जो ऑडियो सिग्नल आपने यहाँ से बोले जनरेट किए उसको पहले आपने प्रोसेस किए, फिल्टर किए, तब जाके आपने उसको मॉड्यूलेटर ब्लॉक पे दिए विद द हेल्प ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर। फिर ये मेन पॉइंट ये है, इन दिस टाइप मॉड्यूलेशन टेक प्लेस एट वेरी लो पावर लेवल एंड देन इट इज एम्पलीफाइड विद द चेन ऑफ लीनियर एंड पावर एम्पलीफायर। तो ये ब्लॉक में क्या होता है, सबसे पहले जो मॉड्यूलेशन होता है वो लो पावर लेवल पे होता है, फिर उसके बाद चेन ऑफ एम्पलीफायर यूज होता है लीनियर एंड पावर एम्पलीफायर का, ताकि उसका पावर लेवल क्या हो जाए, बढ़ा लिया जाए, फिर उसको एएम ट्रांसमिट एंटीना के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेटेड। अब उसी का अपोजिट दूसरा आपको जो ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर। हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर में अब देखो क्या चेंज हुआ है, यहां से वही हो रहा है, स्टेबलाइज आरएफ क्रिस्टल ऑसिलेटर से क्या यूज किया आपने, कैरियर सिग्नल को जनरेट किए। लेकिन अब यहाँ पे मॉड्यूलेटर ब्लॉक एकदम लास्ट स्टेज में, सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हो, पहले एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, अच्छा खासा एम्पलीफिकेशन कर रहे हो। पहले क्लास ए आरएफ एम्पलीफायर आया, फिर उसके बाद दूसरा एम्पलीफायर आया क्लास सी आरएफ एम्पलीफायर, उसके बाद थर्ड स्टेज एक और आरएफ एम्पलीफायर आया, लेकिन वही जो आरएफ एम्पलीफायर यूज हो रहा है क्लास सी, ये क्लास सी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लास सी सबसे ज्यादा एफिशिएंट आपका जनरेट करने वाला सिग्नल है पावर का। आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट पावर एम्पलीफायर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, फिर लास्ट वाला जो है वो क्लास सी पावर एम्पलीफायर होता है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पूरा एफिशिएंटली आपको पावर सिग्नल, हाई पावर सिग्नल जनरेट करके देता है। तो ये हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर में क्या होता है, आप कैरियर सिग्नल को जनरेट कर रहे हो, फिर नीचे ऑडियो सिग्नल का आपको दिख रहा है, ऑडियो प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग, क्लास ए एफ एम्पलीफायर, क्लास बी एफ पावर एम्पलीफायर, यानी पहले ही आप लोग मॉड्यूलेशन के पहले ही अच्छा खासा एम्पलीफिकेशन कर ले रहे हो। वो अच्छा खासा एम्पलीफिकेशन होने के बाद फिर लास्ट स्टेज जो होता है, जो मॉड्यूलेटर ही होता है, जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है, वही मॉड्यूलेटर का भी काम करता है, इसमें वही मॉड्यूलेटर बनता है, वही एएम सिग्नल को डायरेक्टली जनरेट करता है। तो पहले से ही इसमें एम्पलीफिकेशन होके आया है, तो अब जो मॉड्यूलेशन होगा वो कौन से पावर लेवल पे होगा, जब ऑलरेडी इसके पास हाईली जनरेटेड कैरियर सिग्नल आया, हाई पावर जनरेटेड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया, तो जो मॉड्यूलेशन होगा लास्ट ब्लॉक में, तो उसको हम लोग कहेंगे हाई पावर लेवल पे मॉड्यूलेशन हुआ है। यानी ये जो मॉड्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, वो ऑलरेडी आपके पास एम्पलीफाइड सिग्नल्स आए, कैरियर सिग्नल भी एम्पलीफाइड होके आया है और ऑडियो सिग्नल भी अच्छा खासा एम्पलीफाइड होके आया है। फिर फाइनली आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रहा है और यहाँ से जो सिग्नल मिला, एम सिग्नल मिला, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। अब इसके बाद कोई पावर लेवल एम्पलीफायर की यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो मॉड्यूलेटर हुआ तो फिर आप लोग फिर बाद में उसका एम्पलीफिकेशन कर रहे हो, फिर एंटीना के थ्रू भेज रहे हो। नहीं, यहाँ पे कैसा है, ऑलरेडी एम्पलीफिकेशन हो गया, लास्ट स्टेज में मॉड्यूलेशन है, अब यहाँ पे जो एम सिग्नल जनरेट हुआ वो डायरेक्टली ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो पहले से यहाँ पे एम्पलीफाइड होके आया था, पावर लेवल बढ़ के आया था, लास्ट स्टेज में खाली क्लास सी एम्पलीफायर में मॉड्यूलेशन हो गया, एम सिग्नल जनरेट हुआ और वो एम सिग्नल डायरेक्टली आपका क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा स्पेस में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ये ब्लॉक में आपको एक्सप्लेनेशन में यही नजर आएगा। इन दिस टाइप द मॉड्यूलेशन टेक प्लेस इन द लास्ट स्टेज, द मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द लास्ट स्टेज ऑफ क्लास सी output amplifier that is at a very high power level.
तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इन दिस ब्लॉक डायग्राम, द मॉड्यूलेशन टेक प्लेस, कहां पे टेक्स प्लेस होता है? इन द लास्ट स्टेज यानी आखिरी स्टेज में, आखिरी स्टेज ऑफ क्लास सी पावर एम्पलीफायर में मॉड्यूलेशन होता है, और वो भी कैसा? एट अ वेरी हाई पावर लेवल, बहुत हाई पावर लेवल पे होता है। पहले से इतने सारे पावर लेवल के साथ बढ़ के आ रहा है वो, ये कैरियर सिग्नल पहले से इतने हाई पावर लेवल के साथ बढ़ के आ रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी पहले से इतने हाई पावर लेवल के साथ बढ़ के आ रहा है, और लास्ट स्टेज में फिर उसका मॉड्यूलेशन होता है। Because of use of highly efficient class C amplifier, the efficiency of this type is very high. क्योंकि क्लास सी एम्पलीफायर यूज हो रहा है जिसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, इसके लिए हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर में की भी एफिशिएंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो ये एक्सप्लेनेशन था आपका लो लेवल और हाई लेवल में। फिर इसके बाद कंपैरिजन भी दिया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल एएम मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर। तो लो लेवल में क्या है? द मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस एट लो पावर लेवल। हाई लेवल में क्या है? द मॉड्यूलेशन टेक्स प्लेस एट हाई पावर लेवल। लो लेवल में कौन सा एम्पलीफायर यूज होता है? लीनियर एम्पलीफायर सच एज क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर यूज। यानी ऊपर वाले में आपने क्लास सी नहीं देखे होंगे, यहाँ पे कहीं क्लास सी नहीं यूज हुआ है, सिर्फ क्लास ए यूज हुआ है। फिर ये लीनियर और पावर एम्पलीफायर भी कौन से एम्पलीफायर यूज होते हैं? क्लास बी और क्लास ए बी, क्लास सी एम्पलीफायर नहीं यूज हुआ है। हाई लेवल मॉड्यूलेशन में कौन सा एम्पलीफायर यूज होता है? इधर पे लिखा हुआ है, हाईली एफिशिएंट क्लास सी पावर एम्पलीफायर इज यूज। हाई लेवल में हम लोग ने देखे हैं कि हाईली एफिशिएंट क्लास सी पावर एम्पलीफायर यूज। अब लो लेवल में जब क्लास सी एम्पलीफायर यूज नहीं होता है तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? कम होगी, एफिशिएंसी इज लेस। यहाँ पे हाई लेवल में क्या होता है कि क्लास सी एम्पलीफायर यूज होता है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसके लिए उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी? हाई रहेगी, एफिशिएंसी इज हाई। और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिजाइन और पावर एम्पलीफायर इज इजी, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है लो लेवल मॉड्यूलेटेड में, क्लास सी एम्पलीफायर यूज नहीं होता है, तो इसका पावर लेवल का डिजाइन जो है वो कम पावर लेवल पे होता है, तो इसका डिजाइन कैसा? इजी है लो लेवल का। लो लेवल का डिजाइन कैसा? इजी है, डिजाइन और पावर एम्पलीफायर इज इजी। लेकिन यहाँ पे कैसा है? डिजाइन और पावर एम्पलीफायर क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि जो मॉड्यूलेशन भी हो रहा है वो लास्ट स्टेज में हो रहा है, क्लासिक पावर एम्पलीफायर में हो रहा है, तो जिसका और वो भी पावर लेवल हाई पे हो रहा है, तो इसका डिजाइन बहुत क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो डिजाइन ऑफ दिस पावर एम्पलीफायर इज कॉम्प्लेक्स, डिजाइन ऑफ पावर एम्पलीफायर इज इजी लो लेवल में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपैरिजन के भी, आप लोग को इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, ब्लॉक डायग्राम ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर। तो जब एएम ट्रांसमीटर आएगा तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम 2 टाइप्स मेंशन करके एक्सप्लेनेशन करना है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, आप लोगों को जो मैंने समझाने की बात किया होगा समझ में आई होगी। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ नहीं समझ में आया रहेगा, तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको जरूर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो ये आज का हम लोग का टॉपिक था, आज के लेक्चर का, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम ट्रांसमीटर, जिसमें हम लोग ने आज देखे लो लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर एंड हाई लेवल मॉड्यूलेटेड एएम ट्रांसमीटर, और दोनों का कंपैरिजन भी देखे हम लोग ने। So thanks for understanding and listening. Please study well, stay at your home, do your homeworks properly. Thank you very much.